Krishna Krishna Bhutale Srimate Jaya Padmani Kriti Nami Krishna Krishna Bhutale Srimate Jaya Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Sadai Gaura Katha Samadaya Sagadhamari Namo Acharya Nitai Kripa Sadai Gaura Katha Samadaya Sagadhamari Namaha Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Nami Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Nami Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Nirvichesha Punyavadi Bhattacharya Pracharine Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jaya Gauranika Jaya Gauranika Gauranika Jaya Gauranika Jaya Radha Madhava Saraswati Jaya Radha Madhava Saraswati Jaya Radha Madhava Saraswati Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Narsinga Dev Jaya Prahlad Maharaj Narsinga Dev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Narsinga Dev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Jaya O Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath O Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhava Tume Jai Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Jai Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhava Tume Jai Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhava Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhava Tume Jai Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhava Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jai Nirachal Chandra Swami Jai Jagannath Nirachal Chandra Swami Jai Jagannath Jaya Nilachal Chandra Swami Jai Jagannath Nilachal Chandra Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath
जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ओ जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हनुमान सीताराम जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय बोलो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदे देवी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय तुलसी महारानी
जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय श्री वृंदे जय वृंदे जय गंगा मैया जय यमुना मैया जय गंगा मैया जय यमुना मैया जय गंगा मैया जय जय गंगा मैया जय यमुना मैया गंगा मैया जय यमुना मैया जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा ओ जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय संकीर्तन महायज्ञ की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद श्री जयप्रकाश गुरु महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम गंगा मैया जमुना मैया की तुलसी देवी भक्ति देवी की समवेता भक्त वृंद की सभी उपस्थित भक्तों की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to you Srila Prabhupada, all glories to you Srila Guru Maharaj. पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंद। पतित पावन परम करुणामय हमारे परम प्रिय परम आदरणीय ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज के पावन चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के कोमल अति दयामय करुणा सागर जैसे दिव्य चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए संपूर्ण परंपरा ठाकुर जी श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु निमाई निताय इत्यादि सभी ठाकुरों को और आप सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए ये अति सुंदर सुअवसर जो प्राप्त हुआ है उसे मैं बहुत धन्य अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्य से आप जैसे वैष्णवों का संग प्राप्त होता है। हम वैसे समझ नहीं सकते, हमें लगता है कि हम इसे काफी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, हल्के में लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम सभी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम सबको इतने उन्नत भक्तों का संग प्राप्त हुआ। बहुत ही दिव्य, बहुत ही उन्नत, बहुत सेवा भावी ठाकुर के प्रेमी जैसे भक्तों का संग प्राप्त होना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा सद्भाग्य। भाग्य क्या होता है? भाग्य में ऐसा होता ही नहीं। किसी के भाग्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सुख हो कि जिसमें इतने उन्नत वैष्णव का संग मिले, सत्संग मिले। तो ये हमारे गुरुदेव की परम कृपा, करुणा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, अनंत कोटि वैष्णवों की हम पर दृष्टि पड़ी है शायद, उनकी कृपा और ठाकुर की अहेतु की कृपा, राधा रानी की प्रेम भरी दया, उसके कारण ही हम ये ऐसा समय प्राप्त कर सकते हैं जब हम इतने उन्नत भक्तों, प्रेमी भक्तों के बीच में बैठ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्लभ समय है और हमें इस समय का भान होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए। और इसके लिए चाहे कुछ भी गंवाना पड़े, चाहे कुछ भी, इस ऐसा मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप में से कुछ भक्त ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा रेगुलर है, चाहे कुछ भी हो जाए अवश्य आते हैं, और कुछ भक्त अभी जो यहाँ है भी नहीं शायद, तो ऐसे भी भक्त हैं कि जो इसका मूल्यांकन कर नहीं पाते। ये दुर्भाग्य है, तो इसलिए आते नहीं है सत्संग। परंतु ये सत्संग इतनी बड़ी हमारी धरोहर है, इतनी शक्ति है इसमें कि हमारे अनंत कोटि जन्मों के पाप हो या हम पर चाहे कितने भी ग्रहों की कुदृष्टि हो, चाहे हमारे ऊपर कोई कैसा भी कोई काला जादू, पीला जादू हो या कुछ भी हो, या हमारे ऊपर कैसा भी कुछ भी दुख या तकलीफ या परेशानी हो, वो सभी कुछ सबका ही निवारण हो सकता है यदि हम भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन करते हैं। क्योंकि ये भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन में साक्षात ठाकुर वहां पर ही रहते हैं। जब वो यहाँ रहते हैं तो फिर तो और क्या हमें छू सकता है। तो हम पर उनकी जो ये जो कृपा दृष्टि है,
तो तभी पड़ती है जब हम लोग भक्तों का संग करते हैं। इसीलिए जैसे कल मुझे एक भक्त बता रहे थे कि वो इतने ज़्यादा व्यथित थे एक समय, तो उनको लगा, वो भक्तों के संग में रहते हैं, उनको लगा कि मैं भक्त का संग छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊं। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा ताकि वैष्णव अपराध ना हो। तो मैंने कहा अरे ये कौन से शास्त्र में लिखा है? एक शास्त्र ऐसा दिखाओ, एक आचार्य की वाणी ऐसी दिखाओ, एक एक कथन ऐसा दिखाओ किसी का, प्रभुपाद जी का या किसी का भी, जहाँ लिखा हो कि वैष्णव अपराध से बचने के लिए वैष्णव से दूर चला जाना चाहिए। इससे विपरीत है। महाप्रभु बार बार कहते हैं कि अगर मैंने वैष्णव संग छोड़ दिया तो मैं भी, हो सकता है मेरा भी मन विचलित हो जाए। कौन कहता है? साक्षात महाप्रभु कहते हैं कि अगर मैंने वैष्णव का संग छोड़ दिया तो मैं भी विचलित हो सकता हूँ। तो फिर आप और मैं कौन से खेत की मूली है? ताদের चरणों से भी भक्त संग में जन्म है, यही अभिलाष, जितना जन्म है भक्त का संग मिले बस। भक्तों का संग क्यों? भक्तों का संग इसीलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम चाहे कैसी भी दशा में क्यों ना हो, हमारी कैसी भी मनोस्थिति हो, कैसी भी दशा हो, अगर भक्तों का संग मिलेगा तो हमारा उद्धार निश्चित है। और फिर भक्तों का स्वभाव कैसे होता है? अगर उनका नंबर लग गया तो जाते जाते, अगर मान लो कि ऊपर से रथ आ गया, विमान आ गया और राधे श्याम आ गए लेने के लिए, या कोई दूत आ गया, तो भक्तों का स्वभाव कैसा होता है? बोलेंगे अकेले अकेले जाएंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से इतना लंबा सफर, आप तो ड्राइविंग करेंगे, मैं पीछे बैठूंगा, मजा नहीं आएगा, इसमें से दो चार को ले ले, ये मेरे सब संगी है ना, उसमें से एक दो को ले लेते हैं तो मुझे थोड़ा रास्ते में कंपनी मिले। बोले नहीं, लेकिन उनका उनका परिपक्वता नहीं है। बोले तो फिर मुझे भी छोड़ दो। भक्तों का स्वभाव ये होता है। भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ उनको भी ले लो। अच्छा, मैं ये जो कह रहा हूँ इसका क्या कोई प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण? शिव जीवन प्रभु, इसका कोई प्रमाण है क्या? जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? मुझे नाम तो याद नहीं है। वो बांसों में इसके बाद एक में भाई के लिए झुमको किया था, फिर पढ़ते पढ़ते गए चेले में पूरे गांव को लेके गए। धुंधकारी, धुंधकारी का एक उदाहरण है कि जिसमें का चार से चलेगा। मैं उधर ही बैठा, उधर बैठा, ત્યાં જ બેસાડ દે। અમને પૂછી લો સંભળાય છે? હું બોલું છું એ સંભળાય છે? હું બોલું છું એ સંભળાય છે? અચ્છા, સંભળાય છે એવું સંભળાય છે, એવું સંભળાયું તો પછી બહુ સારું થયું। ચલો, હવે સંભળાય છે? वेरी गुड। चलो, तो एक उदाहरण है धुंधकारी और गोकर्ण जी का। तो गोकर्ण जी ने जब भागवत कथा, એમને કે મારે જ બોલવાનું, એમને નહીં, तो गोकर्ण जी ने जो कथा की, उस कथा में पहले तो धुंधकारी जो है वो मुक्त हो गए, लेकिन फिर सारा गांव था वहां, तो उन्होंने कहा कि सारे गांव को मुक्त होना चाहिए। तो गांव वालों ने पूछा हम क्यों मुक्त नहीं हुए? तो उसमें उदाहरण ऐसा है कि उन्होंने, ठीक है चलेगा, उदाहरण ऐसा है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने धुंधकारी ना जैसे तीव्र वेदना के साथ, व्यथा के साथ, और क्या कहते हैं उसको, अंदर से उनको जो, क्योंकि दुखी थे बहुत, इतनी वेदना दुख था कि वो पीड़ा के साथ वो सुन रहे थे कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। तो वो जो वेदना से सुना वैसा आपने नहीं सुना, जैसे हम श्रवण करते हैं। मैंने यहाँ बहुत लेक्चर दिए हैं, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कि उसमें से 80% जो है
वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, यूट्यूब में रह जाता है। लेकिन 20% जैसा ही अंदर उतरता है सामने श्रोताओं को, वो मैं देखता हूँ। वो सोता नहीं है लेकिन फिर भी श्रोता भी नहीं है। कहाँ माइंड चल रहा है वो मुझे भी पता नहीं चलता, कि आंखें मेरी तरफ है तो क्यों नहीं जाता है अंदर। तो वो जो धुंधुकारी ने सुना, वो कैसे सुना? पूर्ण एकाग्रता के साथ, व्याकुलता के साथ, मुक्ति की आकांक्षा के साथ सुना तो मुक्त हो गए। तो उन्होंने कहा गोकर्ण ने, आप भी ऐसे सुनो। जब दोबारा किया, जब उन्होंने सबने सुना तो सब गए। लेकिन मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वो अलग है। वो है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की चिंता कहाँ तक करता है, कब तक करता है। तो जब गोलोक जा रहा था तो भी करता है कि वो आ रहा है कि नहीं। उसका एक उदाहरण है ध्रुव महाराज। जब ध्रुव महाराज प्लेन में बैठ रहे थे, विमान में, तो उन्होंने क्या पूछा? मेरी माता कहाँ है, मेरी माता को वो भी आ जाती तो अच्छा रहता। तो वो हंसने लगे, जो उनके पायलट थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ठाकुर जी पहले से ही जानते थे कि आपका हृदय जो है इतना कोमल है कि आप अपनी माता का, क्यों माता इसलिए क्योंकि वो आपकी गुरु है, वैष्णवी है, इसलिए आप उनकी चिंता कर रहे हो। तो चिंता मत करो, जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा तो और एक विमान उनसे पहले उड़ गया था और उसमें उनकी माता ऑलरेडी बैठ गई। तो ठाकुर जी भी दयालु है, वो भी जानते हैं भक्त का हृदय कैसा है। लेकिन भक्त का हृदय ऐसा हो, जब विमान में चढ़ के जाने लगता है तो बोलता है अरे ये 2-4 को ले लो ना मेरे साथ में, मुझे थोड़ा कंपनी मिलेगा, मुझे थोड़ा कंपनी मिलेगा, क्यों मैं अकेला पड़ जाऊंगा। उसको कोई कंपनी की जरूरत, उसको तो लगता है चलो मैं छूटा, इनका जो होना होगा। नहीं, भक्त का हृदय ऐसा होता तो विमान आता ही नहीं है ना। विमान आया है तो भक्त सोचेगा कि इनको भी ले जाओ। इसलिए भक्तों का संग इसलिए इतना ज्यादा मूल्यवान है कि यदि हमें भक्तों का संग मिलेगा तो हमारे भाग्य में ठाकुर के धाम जाने का नहीं लिखा होगा तो भी हमें ठाकुर जी के धाम जाने का मौका मिलेगा। इसीलिए भक्तों का संग हमेशा कैसे भी करके करना चाहिए, कैसे भी टाइम एडजस्ट करना चाहिए, कुछ भी उसके लिए छोड़ना पड़े छोड़ना चाहिए, और भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग इतना मूल्यवान है। अब ये बिल्कुल वैसा है कि एक बच्चे के सामने सोना रख दिया है और उसके सामने आपने लोहा रखा है, तो उसका उसके लिए दोनों एक बराबर है, लोहा सोना हीरा कोई फर्क नहीं। लेकिन एक आपके जैसा सोनीवास निकले वो सोने के साथ खेलता है, अरे एकदम उसका तो अंदर से कुछ कुछ हो जाएगा, बोले अरे सोने के साथ खेलता है बच्चा और उसको कुछ भान ही नहीं है। तो ये मूल्य जो है, मूल्यांकन, वो हमारे में नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भक्तों के संग में इतना पावर है, और इसीलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं अकेला रहना चाहिए, नहीं हम हमारा ये कर लेंगे, हम अकेला भजन कर लेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एकाकी भजन तो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। कोई यदि कहे कि मैं एकाकी भजन करूंगा और सिद्ध हो जाऊंगा, ठाकुर प्राप्त हो जाएंगे, असंभव है, बिल्कुल असंभव बात। ब्रह्मा जी का उदाहरण है, बहुत ही भयानक कथा है ये, बहुत ही वेदना वाली कथा है, ऐसा हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मा जी इतने दूषित हो गए, भक्तों का संग नहीं प्राप्त किया, तो उनको दूसरा शरीर लेना पड़ा, उनको अपना शरीर ही छोड़ना पड़ा। उतना शरीर दूषित हो गया उनका, और उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये शरीर मैं नहीं रख सकता क्योंकि ये दूषित हो चुका है, और उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया और उन्होंने दूसरा शरीर लिया। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिला। और फिर हमेशा आकांक्षा करते हैं मुझे भक्तों का संग मिले, इसलिए तो हरिदास ठाकुर बन के आए और भक्तों का संग प्राप्त किया। नहीं तो उनका भजन कैसा है, एक दिन में 3 लाख नाम जप। अब 3 लाख हरि नाम जो लेते हैं उनको किसके संग की जरूरत है? पूरा टाइम तो हरि का संग कर रहे हैं, हरि नाम का संग कर रहे हैं, तुलसी मैया साथ में है, लेकिन फिर भी वे महाप्रभु और उनके वहां चले गए, मायापुर, ये जगन्नाथपुरी में, वहां पर ही रहने लग गए।
भले उनको जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता था, क्योंकि मुस्लिम शरीर था, इसलिए जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता था, लेकिन निवास तो वहीं करते थे। महाप्रभु उनके लिए रोज प्रसाद लेके जाते थे जगन्नाथ का, कि लो प्रसाद खाओ। तो क्यों? उनको संग चाहिए था, नहीं तो वो अपने जहाँ जो गांव में थे वहां बैठे बैठे 3 लाख नाम जप कर सकते। तो जो भक्तों का संग है, और जैसे महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं नहीं संग करूंगा भक्तों का, तो हो सकता है मेरा मन विचलित हो जाए, मैं स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाऊं, या कुछ और विचार आ जाए, या क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए मैं कभी भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहता, महाप्रभु कहते हैं। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना संग के रहेंगे? इसलिए हमें हमेशा भक्तों का संग करने के लिए लालायित रहना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि बस कैसे मुझे भक्तों का संग मिले। कोई भी भक्त मिला तो वाह वाह, आनंद आनंद, बस लेके उसके साथ बैठ जाओ और कथा उसके साथ करो, कृष्ण कथा। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, जो जब 2 भक्त मेरे मिलते हैं तो क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम। जब 2 भक्त मेरे मिलते हैं तो एक दूसरे को बोध देते हैं, शिक्षा देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए भक्ति में। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी ही हमेशा कथा करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं। और अंत में क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, और आनंद, और बहुत ही आनंद करते हैं। हमें आनंद आता है कि नहीं? भक्तों के संग में आनंद आता है ना। फिर अकेले अकेले गांव में ऐसा आनंद आता है संगीता? ऐसा जैसा भक्तों के साथ यहाँ आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है? नहीं आता। ऐसा आनंद कभी नहीं मिल सकता है जो भक्तों के संग में मिलता है। कीर्तन में कितना आनंद है, प्रसाद में आनंद है, सेवा में आनंद है, सभी में आनंद है। लेक्चर में भी आनंद आता है अगर हम एकाग्र भाव से सुनते हैं तो, है ना। अगर महाराज ने लेक्चर दिया होता तो और भी अच्छा होता है। तो हमारा महाराज आज इंटरवल है उसका आज। और अब इनके बारे में देखो, 5 साल उम्र है इनकी, सुबह से इनका क्या दिनचर्या है। मंगला आरती में आते अपने माता पिता के साथ में, सबके साथ बैठकर जप करते हैं। उन्होंने निर्धारित किया है उतना उनका जप हो जाता है, बाद में रिटायर हो जाते हैं कि मेरा जप जितना हो गया हो गया। तो वो देखो पता भी रहे कितना जप करते हैं, क्या काउंट करते हैं। तो उनका जप हो जाए तो तब तक वो जप करते हैं। जप वो इंतजार करते हैं कि कब सेवा शुरू हो। और ये प्रतिदिन की बात है कि मैं बाद में अगर हो सकता है इनका एक वीडियो भी बनवाऊंगा कि जैसे ही आरती और ये सेवा स्टार्ट होती है तो भाग भाग के बाहर से उनको सब पता भी है, तो कितने बॉक्स रखे हैं, किसमें क्या ज्वेलरी है, कहाँ क्या श्रृंगार है, सब लाके माता जी को देते हैं। उसमें से उनका इयरिंग निकालना, मुकुट निकालना, वस्त्र निकालना, और फिर अपने हाथों से श्रृंगार करते भी हैं ये महाराज। तो इनका भाव देखो। और फिर जब भी अकेले होते हैं आप अगर देखेंगे तो उनके मुख में कोई ना कोई भजन चलता रहता है। कभी तुलसी आरती गा रहे हैं, कभी हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ। तो ये क्या है? यानी कि ये पिछले जन्म में निश्चित रूप से बहुत ही उन्नत भक्त रहे होंगे, लेकिन कुछ या तो कुछ बाकी रह गया, या फिर उनको लगा कि मुझे और संग चाहिए, इसलिए हम पर कृपा करके हमारे बीच में आ गए। नहीं तो क्या, इतने उन्नत जीव को मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन काल में इतना ज्यादा उन्नत जीव देखा नहीं। 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में इतना कुछ करता है। मैं तो 50 साल की उम्र में नहीं सोच सकता इतनी चीजें ये करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भक्तों का जो संग है वो सभी को प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए लालायित रहना चाहिए, और उसके लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए कि कहाँ भक्तों का संग है। नहीं, उसके लिए एक चीज छोड़नी पड़ेगी, और वो है भक्तों की निंदा। अगर हमें भक्तों की निंदा का कोई अवसर मिलता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लॉटरी लग गई, पकड़ो आज तो करो निंदा, जितनी मजा आ जाएगा। और टाइम के बाद मजा, अरे वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा नहीं। अरे बाबा,
ये अवसर जैसे ही मिले तुरंत वहां से पलायन करो, वहां से भागो, ऐसे भी करके वहां से अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जिनको ठाकुर जी प्रेम करते हैं, जिनको ठाकुर जी अपने लिस्ट में ऐड कर चुके हैं, उनकी यदि निंदा हो रही हो और आप सुनेंगे भी, हाँ में हाँ भी मिलाएंगे, तो फिर आपका क्या होगा वो आप सोचो। अच्छा, चाहे कुछ मान लो कुछ बुरा ना भी हो, यानी कुछ एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ऐसा कुछ अगर ना भी हो, तो कम से कम हमारा भजन में से इंटरेस्ट जो है, भजन में रुचि जो है, वो समाप्त हो जाएगी, नाम में रुचि समाप्त हो जाएगी, ठाकुर सेवा से रुचि समाप्त हो जाएगी। ये सब अगर होने लग जाए, ये मैं शास्त्रों में जो बताया, गुरु महाराज की जो उनका जो ग्रंथ है नाम अपराध के विषय में, उसमें बता रहे हैं गुरु महाराज कि भक्त ये लक्षण है, जैसे ही अगर किसी का नाम में से रुचि हट जाए, जप करने में से, कीर्तन में से, सेवा में रुचि हट जाए, नियम पालन करने से रुचि हट जाए, तो समझना चाहिए निश्चित रूप से वैष्णव अपराध ही हुआ है। और इसीलिए ये हो रहा है कि नाम में से ही रुचि चलेगी। भगवान की सजा भी देखो कैसी है विचित्र, हाथ पैर तोड़ के नहीं बैठाएंगे, नाम में से ही रुचि। तो आप चिंता मत करो, उनका है महाराज लेकिन छोटे हैं ना, इसलिए उनको बाकी सब माफ है। तो नाम में से रुचि हट जाए, जप करने में से इंटरेस्ट चला जाए, सेवा करने में से आलस्य आए, नहीं करना है कोई और कर लेगा, ये है वो, तो क्या होगा अंत में? क्या होगा अंत में? तो एक दिन फिर वो खड्डे में गिरना ही है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि सब छूट जाएगा, फिर नियम पालन बंद हो जाएगा, फिर जब धीरे धीरे छूटने लग जाएंगे, फिर सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नहीं, वो ध्यान में है, समाधि, क्योंकि वो इतना समाधि समाधि तो ये सब नहीं, ये इसीलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि कोई सोए नहीं। तो कोई अगर किसी की निंदा कर रहा है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुनना नहीं, तीनों में निंदा करता है करके निकल, ऐसा निकल जाना चाहिए, तो क्या करना है? तो सुनना ही नहीं, मतलब उठ जाना चाहिए, मतलब जैसे ही वो निंदा करना चालू कर, ये तो प्रतिवाद करना चाहिए। हाँ? तीनों में क्या करना चाहिए? प्रतिवाद भी करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, प्रतिवाद। निंदा नहीं, सच बोलना ऐसा। बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सामने भी निंदा करने वाला भी तो वैष्णव ही है, तो इसीलिए उसका भी अपमान नहीं होना चाहिए, तो उसको मना भी करना बहुत ही युक्ति पूर्वक मना करना चाहिए कि उसको बुरा ना लगे इस तरह से, और समझ भी जाए कि ये निंदा नहीं सुनना चाहते। तो क्या करना चाहिए? कोई ऐसा वास्तविक बहाना बनाना चाहिए, या तो कोई बात का पूरा टॉपिक अचानक चेंज करने चाहिए, उनका अपमान ना हो, उनको बुरा भी ना लगे, और पता भी चले कि इन्होंने नहीं सुनी निंदा, इस तरह से सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर इस जगन्नाथ मंदिर में, यहाँ जगन्नाथ के सामने ही बैठ के कुछ माताएं डिस्कस करती, वो उसके और मैं वहाँ, वो लोग एसी में बैठे, मैं वहाँ अंदर गर्मी में पंखे में बैठा हूँ, पसीना निकल रहा है, इंतजार कर रहा हूँ लोग जाएंगे, तो मैं थोड़ा बैठा हूँ, और उनका चल रहा है, और अच्छा बाकी सब अंदर काम कर रहे हैं, ये कुछ काम कर रही है, वो कुछ कर, यहाँ पर माता इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न, और एकदम सीरियसली बातें कर रही है। और फिर मुझे लगता है कि शायद यही चैत्य गुरु के रूप में मुझे अंदर से इंडिकेशन देते, बाहर निकलो और इनको निकालो, नहीं तो अभी हमारा कान पका देगा ही, क्योंकि हमारे भक्तों की निंदा हमारे ही सामने बैठ के कर। 64 नियम ठाकुर के सामने, 64 नियम जो है वो उसकी जानकारी हमें नहीं है। 64 नियम है कि ठाकुर के सामने क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसमें यही है कि भक्तों की निंदा और ठाकुर के सामने ही बैठ के, चलो कहीं और भी बैठे हो तो ठीक है,
ये तो यहाँ एसी में ठाकुर जी के सामने बैठ के ही, और वो भी जैसे वो भी सुन रहा है मुझे, क्या सुन रहा है, मतलब मेरे ही भक्तों की निंदा सुन रहा है। बोले कैसे सुनेगा बताओ, उसको कैसे अच्छा लगेगा? हम्म? कैसे अच्छा लगेगा? क्या होगा उसका? वो आपके ऊपर से उसका प्रेम कम हो जाएगा कि नहीं? वो सोचेगा कि इसको ये क्या जरूरत है इसका, इसकी निंदा करने की। कमियां किस में नहीं है? हम क्या कोई भी ऐसे हैं कि जो परफेक्ट है एकदम? नहीं ना। आपको, जब मैं भी चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, बोलता हूँ, ये करता हूँ, तो जब खाता हूँ ये, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ कमियां, कुछ कुछ, महाराज ऊपर बैठ के, कुछ कुछ कमियां आपको मेरे अंदर भी दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती तो होगी। हाँ हाँ बोल रही है, अच्छा ना, नाम निष्ठा माता जी, हाँ बोल। अब बाद में बताना, लिस्ट बताना क्या क्या कमियां, तो मैं कुछ सुधरने का प्रयास करूँ, मैं कुछ सुधरने का प्रयास करूँ। तो दिखती स्वाभाविक है, क्यों? दोष दर्शन के में एक्सपर्ट है हमारी आंखें। दोष तो दिख ही जाता है, पहला दोष ही दिखता है, अच्छाई बहुत कम दिखती है। तो वो दिखेगी, होगी, है, क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट हैं। हम सब दोष के पूरे, क्या बोलते हैं, पैकेज है, वो दोष के पैकेज है। हमें दोष ही दोष है, उसमें से हम थोड़ा सा भक्ति में आ गया है, थोड़ा सा, तो हम ये समझ लेते हैं मैं एकदम सुपर परफेक्ट हूँ, ये सब दोष वाले हैं, तो कैसे चलेगा ना। तो इसलिए किसी में दोष दिखता भी है तो या तो प्रेम से उसको समझा के उसको उसमें से बाहर निकालने में हेल्प करो, या फिर उसकी चर्चा छोड़ दो। उसका कार्य इन्होंने लिया है, ठेका, ठेका लेते हैं, ठेका लेते हो ना, ठेका लिया है, तो ठेका इन्होंने लिया है हमारे दोष दूर करने का, वो हमने नहीं लिया। तो हम चर्चा करके क्या फायदा होगा हमारी, कि ये इसमें ये दोष है, इसमें ऐसा है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, ऊपर से हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए वो दोष देखने के बदले हम ये देखें कि उसमें अच्छा ही क्या है। ये ट्राई किया है कभी कि चलो दोष है इसमें, ठीक है, ओके, चलो अब एक दूसरा ट्राई करते हैं, साइड बी देखते हैं उसका, कि उसमें अच्छा ही क्या क्या है, उसका लिस्ट बनाते हैं, चलो लिखो। दो माताएं बैठे और लिखे, अगर ऐसा हो ना तो धरती फट जाएगी। दो माताएं बैठ के किसी के अच्छा ही लिखने बैठे ना, धरती माता बाहर है कि रुको, मैं कहाँ हूँ, एक मिनट, मुझे चक्कर आ रहा है। दो माता बैठ के अच्छा ही लिख रही है, क्या बात है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बैठ के मिलो और देखो इसमें क्या क्या अच्छा है, लिखो, फिर देखो, तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, तो इनमें तो कितनी अच्छाई है, इतनी खूबियां हैं इसमें, और हम तो उनके छोटे मोटे दो चार दोष देख रहे हैं। गुरु तत्व जो है स्वाभाविक रूप से चैत्य गुरु की कृपा से और परंपरा की कृपा से उनकी दृष्टि इसी प्रकार की होती। अगर गुरु की दृष्टि, अगर गुरु की दृष्टि इस प्रकार की ना हो तो क्या होगा जानते हैं? अगर गुरु दोष ही देखते हो तो क्या होगा जानते हैं? अच्छा, दोष देखते अवश्य हैं, लेकिन दोष की ही गिनती करेंगे गुरु, तो क्या होगा शिष्य का जानते हैं? क्या होगा? अगर गुरु से दोष देखता है, दोष 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 दोष, रिजेक्ट। लेकिन क्या देखते हैं? दोष 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 दोष, गुण, ओ गुण, एक मिनट, आजा इधर, आजा इधर बैठ, एक गुण है, इधर आजा, दोष मैं निकाल दूंगा। अगर गुरु की दृष्टि ये ना हो तो वो कभी भी अपने शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है जानते हैं? अभी का हाल ही का उदाहरण है, मधु पंडित प्रभु, जो हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं। इतना दोष, क्या कोई इसकी लिमिट नहीं, लेकिन हमारे गुरु महाराज की करुणा इतनी विशाल है कि उनके अंदर भक्ति का या कोई भी जो भी कोई कुछ कुछ गुण देख करके
उनके प्रति उनका भाव अभी भी मलिन नहीं है। गुरु महाराज मैं तो ये कई बार बता चुका हूँ। उज्जवल प्रभु एक बार उनके साथ बात कर रहे थे, बोला वो मधु पंडित ऐसा कहा, तो गुरु महाराज ने उनको रोका, रोको, वो तुम्हारे सीनियर गुरु भाई हैं, मान से बुलाओ, प्रभु कहो। कहने का तो क्या तात्पर्य है कि गुरु चाहे करोड़ों दोष क्यों ना हो, दोष नहीं, उसमें एक दो गुण भी है तो वही देखेंगे और एकदम एंड तक प्रयास करेंगे कि ये बच जाए, ये निकल जाए, इसमें से निकल जाए, पूरा पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जैसे माता पिता, मान लो कि एक वीडियो बहुत पहले किसी ने भेजा था व्हाट्सएप में, एक पूरा परिवार जो है जिसमें 6-7 जन थे, वो सब एक नदी के बहाव के बीच में फंस गए। मतलब कहीं से अचानक एक नदी बहुत बाढ़ आई थी और उसके बीचों बीच में वो पूरा परिवार फंसा था। इसमें 3-4-5 बच्चे थे और पति पत्नी थे। और वीडियो में एकदम स्पष्ट दिखता है कि माता और पिता दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो हर एक बच्चे को पूरा प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए। उसमें से कौन सा वाला बच्चा उनका ऐसा होगा कि जे इसको फेंक दो, चलो बाकी सब तो बचा लो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? न भगवान की दृष्टि में और न गुरु की दृष्टि में ऐसा हो ही कोई नहीं सकता कि इसको फेंक दो बाकी सबको बचा लो। इसीलिए चाहे उसमें कितने भी दोष क्यों ना हो, पूरा डूब रहा हो, तो भी लास्ट मोमेंट तक उसको पकड़ के रखने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज वही कर रहे हैं मधु पंडित प्रभु जी के साथ, कि वो चाहे कितना भी गिरे डूबे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज को आशा है कि शायद बदल जाएगा, शायद वो उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और सत्य के साथ देंगे। तो ये गुरु का गुण होता है और यही गुरु का गुण होना चाहिए और यही हर वैष्णव का गुण होना चाहिए। हर वैष्णव का गुण यही होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? कि कोई भी सामने है उसके अंदर चाहे कितने भी दोष दिखते हैं, पूर्ण प्रयास लास्ट मोमेंट तक करो कि उसके अंदर जो भी दोष है उसको ना देखो और उसके गुण देखो। उसमें एकाध गुण भी दिखता है तो उसको ट्राई करो कि इसमें से बचा दिया। और अगर हमसे नहीं हो सकता है तो गुरु के पास जाके, ठंडी लगती, गुरु के पास जाकर के कहो कि ये इसमें मुझे ऐसा लगता है मैं हैंडल नहीं कर सकता, इनमें दोष जो है वो मुझसे नहीं हैंडल होंगे, क्या किया जाए? तो गुरु क्षमता रखते हैं, गुरु उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये सब अच्छा है, ये बुरा है, इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, इसको सजा दो या ये करो। ये आपका कार्य नहीं है। अच्छा, और गुरु सजा देते हैं तो, गुरु अगर दंड देते हैं तो देते होंगे? ये प्रश्न चिन्ह ही बहुत बड़ा है। होंगे क्यों? नहीं, अच्छे के लिए देते हैं, देते होंगे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य ही वही है कि एना केना प्रकारेण, किसी भी तरह से चाहे कुछ भी करो, उसको साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उसको पूरी तरह से शुद्ध करके भक्ति में लाओ। यही उसका कार्य है, उनका कार्य श्री गुरु का। और श्री गुरु इसलिए दंड जरूरत पड़ती तो दंड देते हैं, लेकिन और शिष्य को समझ हो ना हो दंड देते हैं। जैसे इनको कुछ चाहिए, वो उनके लिए अच्छा नहीं है, इनको कुछ चाहिए, ये उनको इनके लिए अच्छा नहीं है, तो माता पिता क्या कहेंगे? देखो रोना नहीं, तुम रोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, तुम रोना नहीं, अरे अरे रोया, ले लो। ऐसा हो सकता है? तो क्या वो माता पिता सही है? नहीं है, नहीं है ना। चाहे वो रोए, गिरे, कुछ भी करे, बेहोश हो जाए, लेकिन वो जो उसके लिए अच्छा नहीं है वो नहीं देंगे। गुरु भी वैसे ही सजा देंगे, लेकिन शिष्य को समझ होनी चाहिए, नहीं है तो भी गुरु अपना दंड छोड़ेंगे।
उसके लिए जो अच्छा नहीं है तो उसको नहीं देंगे। ठाकुर भी वही करते हैं। कल की बात है, कल एक भक्त जिद पर अड़ गए, मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि आप जगन्नाथ लेकर मेरे घर पर आइए संडे शाम को। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है और मुझे पूरा भरोसा है कि जगन्नाथ घर पर आएंगे तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ मेरे ख्याल से आपके घर पर आए थे जगन्नाथ, आए थे ना? तो वहाँ आए थे, मैं भी आया था, लेक्चर दिया, कीर्तन किया, सब किया। तो उस टाइम पे जगन्नाथ को दिख नहीं रहा था आगे आने वाली विपत्ति आपके घर में? दिख रही होगी कि नहीं दिख रही? दिखती थी कि नहीं? कि वो खाली यही देख रहा था कितने आए, कौन आया, आइसक्रीम है, क्या है, क्या बना? जगन्नाथ क्या थे? तो जगन्नाथ ने उस दिन जो कृपा करनी थी आपके घर पर, वो उस दिन की कि नहीं की? बोले कि हाँ की होगी। मैंने बोला तो फिर आपको दोबारा कृपा करने के लिए उनको क्यों बुलाना है? बोले नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो आएंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। अरे मैं बोल रहा हूँ थोड़े दिन पहले जगन्नाथ आपके वहाँ आए, उन्होंने इतना कुछ किया, बहुत आनंद था, कीर्तन हुआ, बहुत बढ़िया प्रसाद हुआ, सब कुछ अच्छा था। तो उस दिन उन्होंने कृपा क्यों नहीं की होगी, ये मुझे पहले समझाओ। बोले नहीं, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है और मुझे पूरा भरोसा है जगन्नाथ आएंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। अरे ये टेप तो बार बार एक ही बज रही है। मैंने बोला भी कि आपकी तो सही सुई अटक गई है एक जगह पर, एक ही बात बार बार बोल रहे हो, मेरी बात समझ रही है कि नहीं? इतनी बार उन्होंने रिपीट किया कि मैंने चिल्लाना शुरू किया फोन पर। मैंने चिल्लाया उन पर, मैंने बोला कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं कि जगन्नाथ की कृपा तब हो चुकी है और अभी जो प्रॉब्लम आपके वहां आया है वो उनकी कृपा है, प्रॉब्लम नहीं है। जिसको आप प्रॉब्लम देख रहे हो वो वास्तव में आप बहुत कहीं फंसने वाले थे, उसमें से निकालने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन में रखा है जो आपको पसंद नहीं है। ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर कृपा ही है। आप सोचते हो आप बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, भगवान हो, आप इतने बुद्धिशाली हो कि आपको जो दिखता है वही सही है, आप जो सोचते हो वही सही है, कि वो सोचता है वो सही है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक भक्त तो मुझे पूछ रहे थे एक बार कि मैंने बहुत बार बार मैंने बोला 3 बार ट्राई करना चाहिए कोई भी चीज़। मैं भी ट्राई करता हूँ कि यही प्रैक्टिस करूँ, कोई भी चीज़ है 3 बार ट्राई करता हूँ। एक बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, चौथी बार बोलता हूँ समझ गया तुझे नहीं, मतलब इसमें कुछ और अच्छा प्लान है, छोड़ो, दूसरा प्लान बी। समझ जाना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए, वो नहीं तो उसके पीछे लगा है, कर रहा है पर फेल हो रहा है। तो ये कंटाल के फिर बोलता है कि चलो कुछ तो करो, इसको मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन हम समझते नहीं है क्यों उसके पीछे इतना भागते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके घर का प्रॉब्लम जो वो देख रहा है वास्तव में प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हो सकता है? जगन्नाथ उसके घर में जा चुका है, कीर्तन हो चुका है, भक्त जा चुका है, कैसे हो सकता है प्रॉब्लम? हो सकता है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। वो क्या सोचता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मेरा जीवन होना चाहिए तो ही मैं प्रॉब्लम के से फ्री हूँ। ये वो होने नहीं देगा ना, वो हमारा माता पिता है। अगर देवी देवता हो तो बात अलग है। प्रभुपाद जी कहते हैं देवी देवता का एकदम सिंपल सीधा फॉर्मूला है, उनको कहो मेरे को इतना इतना चाहिए, लिस्ट लिखा, ओके, और बोले उसके बदले में क्या करोगे? हाँ ये चढ़ाऊंगा, इतना व्रत रखूंगा, ये करूंगा। अच्छा ठीक, ओके, इसमें से तुमने जितना बोला है व्रत उसमें तुमको इसका 75% मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, लो 75, अभी जिम्मेदारी तुम है, इसमें जो भी आएगा वो तुम्हारा, चाहे दुख आए सुख आए जो आए तुम्हारा,
मुझे मेरा दे दो, तुम तुम्हारा ले लो, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरा। ये देवी देवताओं का हिसाब है, ये उनका नियम है कि वो ऐसे ही करना पड़ेगा वो। और ये माता पिता है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा बिजनेस हिसाब करेंगे। वो क्या देंगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही तुम्हें दूंगा, चाहे तुम मांगो तो भी, नहीं मांगो तो भी दूंगा। और तुम चाहे रो कितना भी तो भी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ये समझना ही बहुत जरूरी है। जो ये समझ जाता है वो सदैव आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, और उसके साथ फिर उनका संबंध भी घनिष्ठ हो। वो भी सोचा, अरे मेरा बेटा मुझे समझने लगा है, अब मैं जो करता हूँ वो समझता है, तो उनका आदान प्रदान भी बढ़ जाता है हमारे साथ। वो हमारे साथ उनका जो आदान प्रदान है वो भी बढ़ जाता है। वो भी हमें कुछ कुछ अधिक 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 हमारे साथ कुछ ऐसा आदान प्रदान करने लगते हैं कि हमें समझ में आता है कि हाँ, अब ठाकुर जी साक्षात प्रत्यक्ष रूप से हमसे आदान प्रदान कर दे। तो उसके लिए ये श्रद्धा गुरु में और भगवान में, कि वो लोग जो करेंगे वो सही करेंगे, वो जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं, ये जरूरी है। ट्रायल करने से फेल होने वाले हैं हम। फेल होके क्या फायदा? अच्छा, फेल होने के भी कोई लिमिट तो होगी ना, कितने ट्रायल तक फेल होना है? ट्राई करो। गुरु ने कहा नहीं, मैं दूसरा करके देखता हूँ, फेल हुआ है, चलो एक और ट्राई करते हैं। कितनी बार करेगा? वो प्रभु को मैं कल 6-7 बार तो समझा चुका फोन पर, तो मेरी लिमिट आ गई, मेरा टेम्पर चला गया, और लास्ट में तो मैंने फोन काट ही दिया, लेकिन तब तक भी वो समझा तो नहीं। एक ही टैप बजा रहा था बार बार, मेरे घर में जगन्नाथ आएंगे, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस आप लिख जाओ। और बहुत विनम्रता से बोल रहा था। बाद में मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इनसे कह रहा था, मैंने बोला कि इतना ज़्यादा विनम्रता से वो बोल रहा था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार लेके तुमको वहाँ रख दूँ एक बार। इतना, प्रभु मेरे घर पे जगन्नाथ लाइए ना प्लीज़, मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं बोला, लेकिन मेरा तो फर्ज है कि मैं उनको समझाऊं कि नहीं, कृपा ऐसे नहीं होती कि वो तू बोले कि आए, अब कृपा की तो ही कृपा होगी। कृपा उन्होंने कर ली है ऑलरेडी, वो तुझे समझने जरूरी। इसीलिए फिर मैंने उनको, फिर क्या हुआ लास्ट में बात हुई, बोले आपको उजले जो बोला वही समझ नहीं, आपने समझाया, तो समझ जाओ तो अच्छी बात है, ना समझ फिर क्या बोला? तो तात्पर्य ये है कि ठाकुर के साथ संबंध और गुरु के साथ जो संबंध है, अन्य वैष्णवों के साथ जो संबंध है, इनको हमें समझना है। जैसे पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी के संबंध में क्या जरूरी है? टाइम पर प्रसाद मिलता है, मेरे कपड़े रख दिए बाथरूम में, पानी निकाला है, ये है वो है, टिफिन भर दिया है, यही संबंध है पति पत्नी का। क्या संबंध है? नहीं उसको तो, अरे अभी तो ट्रेनिंग उसको, अभी तो आगे, अभी से ट्रेनिंग मिलेगी तो अच्छा है ना, अभी से ट्रेनिंग मिलेगी तो अच्छा है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं, मेरा तो ऐसे घूमता रहता है ना। लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो आपकी नजर इस पर अच्छा अच्छा, पता नहीं ऐसा हो। अच्छा ठीक है, चलो। तो क्या संबंध है पति पत्नी का, कैसा होना चाहिए बताओ? क्या क्या गुरु महाराज क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारे आचार्य गण क्या कहते हैं, पति पत्नी का संबंध क्या है? क्या है बोलो, किस लिए है पति पत्नी का संबंध? एक दूसरे के प्रति विश्वास। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि ये हो बाह्य, आगे का हार, ये बाह्य है विश्वास विश्वास सब ठीक है, लेकिन ये मूल नहीं है, ये तत्व नहीं है। और आगे कहो कि क्या मूल तत्व क्या है पति पत्नी के संबंध में?
कृष्ण सेवा हम्म? कृष्ण सेवा करनी चाहिए। कृष्ण सेवा कृष्ण सेवा, पूर्णेश्वर प्रभु कह रहे हैं कृष्ण सेवा। ये मूल तत्व है पति पत्नी के संबंध का, कि दोनों को मिलकर के एक साथ भगवत धाम जाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक साथ जाना है। और ये समझना है पहले कि ना मैं पति हूँ ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं पुरुष हूँ ना मैं स्त्री हूँ, मैं भी एक जीवात्मा हूँ, ये भी एक जीवात्मा है। मेरे कुछ कर्मों के कारण मैं पुरुष शरीर में हूँ, इसके कुछ कर्मों के कारण ये स्त्री शरीर में। लेकिन हम दोनों को एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे का साथ निभा करके साथ साथ में भगवत धाम जाना है, गुरु कृष्ण को एक साथ प्रसन्न करना है। इसीलिए पति पत्नी का संबंध है। और हमारा पति पत्नी का संबंध कैसा रह गया है? बस यही, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा ये, मेरा वो किया कि नहीं। बहुत बड़े दुख की बात है। अगर ऐसा संबंध है तो ये अतिशय स्वार्थी संबंध, और वो संबंध आगे चलने वाला नहीं। हाँ, प्रभु जी याद दिला रहे हैं कि तुकाराम जी को जब गरुड़ लेने आए, विमान लेने आया वैकुंठ से, तो तुकाराम जी अंदर चढ़ गए। सामने पूरा गांव के लोग खड़े थे, सबके सामने आए। मैं वो जगह जाकर देख चुका हूँ। गांव के बीच में उन्होंने एक वो बनाया है कि जहाँ पूरे गांव के सामने विमान उतरा और सबके सामने गरुड़ में विमान में बैठ कर के तुकाराम जी सदेह वैकुंठ चले गए। तो वहाँ उनकी पत्नी खड़ी थी। उनकी पत्नी को बोला, अरे चल, मराठी में कहता है आहो, ऐकू येते का, ये मराठी। तो मराठी में कहते हैं, अरे तुमको समझ में आ रहा है, आओ 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 मेरे साथ आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या बोलती है मालूम है पत्नी, अरे आपको घूमना है तो जाके विमान में घूम के आओ, मेरे को तो बच्चे संभालने हैं, संसार संभालना है। आपको जहाँ जाना है जाओ, मैं तो मेरे बच्चे और संसार संभाल लूँ। तुकाराम जी बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, राधे राधे। अब पूरा जीवन समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका मन जो है वो, मेरा परिवार, मेरा मतलब देहात्म बुद्धि ऐसी है कि वो ये सोच ही नहीं पाती कि मैं जीवात्मा हूँ, ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए। वो उन्होंने मना किया, अकेले चले गए। तात्पर्य क्या है कि पति और पत्नी का संबंध ऐसा हो कि जो दोनों मिलकर के भगवत धाम एक साथ जा सके, एक दूसरे को हेल्प कर सके। इसलिए पत्नी ऐसी ढूंढनी चाहिए। ऐसी ढूंढनी चाहिए पत्नी, नहीं तो फिर पत्नी की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी रहो। देखो हमारे माधव प्रभु तो तैयार है, एकदम रेडी। उन्होंने डिसाइड किया है कि ब्रह्मचारी बनेंगे। तो देखो जितने पुरुष है सबने हरि हरि बोल कहा। सभी पुरुषों ने हरि हरि बोल, बच गया, ये बच गया। और दोनों तरफ की बात है ना भाई, कि पत्नी के सारा तरफ इतना सारा एक्सपेक्टेशन, लेकिन साथ साथ में पत्नियों का व्यवहार अपने पतियों के साथ, गुजरात कहो या बंगाल कहो, दोनों के अंदर इतने हैवी पतियों के ऊपर तो जैसे लगता है कचुम्बर बन गए, इतना उनके ऊपर हैवी हो जाती माताएं कई बार। तो फिर बेचारे पति करे तो क्या करे, पति क्यों पति तो पति क्यों, फिनिश हो गया है ना, गुजराती में तो पति क्यों, पूरा हो गया। वो इतना उसके ऊपर अत्याचार, उसका मुंह देखो तो कैसे हो जाता है। तो ये भी तो बिल्कुल अनुचित। देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, हमारे श्री श्रीमद श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज ने किताब लिखी है, गृहस्थों के लिए शिक्षाएं। उसमें उन्होंने समझाया है उस किताब में कि पत्नी को कैसा भी पति क्यों ना हो, शास्त्र ये कहता है कि उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी पति क्यों ना हो। जब आपका पति भक्त हो तो आपको क्या करना चाहिए वो सोचो, भगवान की तरह उसको उसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जो जिसका पति भक्त हो उनकी खूब बहुत ही सेवा करनी चाहिए। अब सेवा शब्द इतना भारी है कि, और वो भी शादी के इतने साल बीतने के बाद,
अब कोई कहे कि तुम इसकी सेवा करो तो एक 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 ऐसा उदाहरण है। एक बार मैं किसी माता को ऐसा बोल रहा था, तो वो माता की माता भी वहाँ थी। तो फिर घर में गए और उनकी चर्चा हुई, तो वो बेटी जो है उन्होंने अपनी माता को कहा कि आपने भी सुना? बोले अब नहीं हो सकता, बहुत साल हो गया, अब कुछ चेंज नहीं होगा, तुम चेंज होना है तो हो जाओ, मैं नहीं हो सकती है। तो ऐसा ऐसा तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। ऐसा तो कैसे चलेगा? महाराज ऊपर बैठो ना थोड़ा, ये किस पे बैठ गया? हाँ रिमोट पे बैठ महाराज। महाराज को इस झंडे में पढ़ना नहीं इसको। हाँ महाराज को तो संन्यास ही लेना है, तो इसके लिए, और जैसे मैं संन्यास का नाम ले तो उसकी माता का आंखों से आंसू निकल जाता है। तो और महाराज को कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में, इसीलिए देखो कैसे ऐसे ऐसे वो बोले ये तो सांसारी बात है, मेरे लिए नहीं है। तो तात्पर्य क्या है? पत्नी को पति का और पति को पत्नी का जबरदस्त साथ निभाना चाहिए, और एक एक उनकी वस्तु में ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनकी आध्यात्मिक। प्रभु आराम से बैठो, तो क्या करना चाहिए पति को पत्नी का? हर एक चीज में देखभाल करनी चाहिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक हर चीज में। ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद पता चला कि उनको पैर का पेन है, 2 दिन तक पता ही नहीं चला। ये कैसा पति पत्नी का संबंध? वो बोले वो बताएगी तो पता चलेगा। अरे भाई पर तुम भी तो पूछो, पत्नी है यार, कम से कम एक आध बार पूछो कैसी है, सब ठीक है कि नहीं। और फिर पत्नी भी कैसी है मालूम नहीं, पता चला कि कैसी है, बोला अब पूछते हो कैसी है, इतने दिन तक पूछा नहीं, कहाँ गए थे, इतने दिन कहाँ थे, ये बोले इससे तो अच्छा है पूछो ही मत। तो मतलब दोनों तरफ से बैलेंस हो बराबर तो अच्छा चलेगा। वो भी हंस रहा है, उसका कारण सिर्फ मैं जानता हूँ। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध, हमारा दूसरे वैष्णवों के साथ का जो संबंध है और ठाकुर जी के साथ संबंध, वो हमें ध्यान में होना चाहिए। वो क्या सोचते हैं? जैसे श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उसका क्या अर्थ है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे ये कैसे संभव है रूप कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और तुझे समझ में आ जाता है? ये कैसे संभव है? ऐसा तो कोई भी नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ सब तू जानता है। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए, गुरु क्या सोचते हैं तो सब उसको ध्यान में आना चाहिए। और हमारी क्या दशा है? गुरु बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ खो गए, कहाँ है, क्या है। अरे वो कहते हैं गुरु का मन समझना चाहिए, और हम उसके बोलने पर, बार बार बोलने पर, बार बार समझाने पर भी समझ नहीं पाते हैं। वो बार बार लेक्चर देता है, एक ही बात रिपीट करता है, एक एक बात कई बार रिपीट करता है, लेकिन हम फिर वहाँ जहाँ थे वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते। तो हमारी गति फिर कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे? भक्ति में यदि आगे बढ़ना है, आगे क्या बढ़ना है, ठाकुर जी को यदि प्राप्त करना है तो मन समझना होगा। ठाकुर का, अपने सत्संगी मित्रों का, पत्नी का, पति का, और सबसे मेन गुरु, इतना अगर हो जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। गलती हो सकती है कभी, लेकिन वो मन कब समझ सकते हैं हम? अच्छा वो बताओ, उसके लिए क्या करने से मन समझ सकते हैं? सोच के बताओ, ऐसा क्या करने से हम उनका मन समझ पाएंगे?
अच्छा, आप ये सोचो कि आप अपने जीवन में किसका मन समझ पाते, वो पहले सोचो तो तुरंत उदाहरण, उस उदाहरण से आप वो कड़ी को समझ पाएंगे। जैसे एक उदाहरण है कि दीपायन प्रभु और शिव जीवन प्रभु का संबंध। आप देखेंगे कि दीपायन प्रभु अपने पिता को समझता है और शिव जीवन प्रभु इनकी इच्छाओं को, इनके मनोभाव को, इनका सब कुछ समझता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं? क्यों समझते हैं? ऐसा क्या किया है? कुछ तो किया ना, ऐसा क्या किया है कि जिससे लोग समझ पा रहे हैं एक दूसरे को? कुछ प्रैक्टिस किया है इन लोगों ने, कोई क्लास अटेंड किया है, कोई कोर्स किया है कि जिससे वो समझ पाए? प्रभु क्या ऐसा किया है कि जिससे? सबसे मुख्य तो प्रेम ही है, सबसे मुख्य है प्रेम, शुद्ध प्रेम, एकदम शुद्ध प्रेम। उसके बाद एक और चीज है, उस प्रेम को मटीरियलाइज करने के लिए, यानी कि वास्तव में उस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अच्छा, दो प्रकार के प्रेम होते हैं। एक प्रेम होता है जो हमेशा मन में रखा जाता है, मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ लेकिन प्रेम मेरे मन में रहेगा। और दूसरा प्रेम होता है हमारे प्रिय ठाकुर और उनकी गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी के साथ जैसा उनका संबंध है, जो व्यक्त प्रेम है, व्यक्त, अभिव्यक्त करते हैं प्रेम। तो व्यक्त प्रेम, तो हमारी भक्ति जो है वो व्यक्त है, तो हमें व्यक्त करना है प्रेम। तो व्यक्त करते हैं जब प्रेम, तब वो प्रेम जो है वो बहुत सुंदर शेप लेता है, बहुत सुंदर आकार लेता है वो प्रेम। तो व्यक्त कब कर सकते हैं? जब हम उस प्रेमी को बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करते हैं तब। अब पूछो आप शिव जीवन प्रभु को कि क्या आप जब एकदम छोटा सा था तब से आप इसको बहुत ध्यान से इसका निरीक्षण कर रहे हो, देखते हो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या खाता है, कैसे करता है, क्या करता है, आपकी नजर हमेशा उस पर रहती है, आप ध्यान पूर्वक उसको देखते रहते हो, तब जा कर के आप, और वो भी प्रेम से, उसके प्रति जो चिंता है उसके कारण आप उसको देख रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, उसके ऊपर आपकी नजर टिकी हुई है, तो आपको समझ में आता है कि अब ये ऐसा करता है, अब वो ऐसा करता है, ऐसे में ऐसा होता है, ऐसे में ऐसा। और फिर आप जब कहोगे कि अब ये सो जाएगा तो वो सो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो आप कई वर्षों से देख रहे हो इसको, है सही बात है, देखते रहते हो। तो आप जिसको प्रेम करते हैं उसका निरीक्षण करना, वो कब क्या चाहता है, क्या कैसा उसको पहनने की इच्छा होती है, क्या खाने की इच्छा होती है, क्या करने की, वो आप देखते रहोगे तो आप उसको सेटिस्फाई, संतुष्ट कर पाओगे। अगर वो देखोगे नहीं, आप अपने में ध्यान दोगे, मेरा मेरा ये काम बाकी, मेरा वो करना है, मेरे बर्तन करना, मुझे ये करना है, तो फिर वो प्रेम परिपक्व होकर आकार कैसे लेगा? प्रेम है, प्रेम हो गया, फिर बाद में क्या किया, बोले तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ, तो आकार कैसे लेगा प्रेम? प्रेम के आकार के लिए एक दूसरे को देखना, उसके ऊपर ध्यान देना, उसकी इच्छाएं, उसके व्यवहार को सब समझना, निरीक्षण करना और फिर उसकी सहायता करना, इसे कहते हैं प्रेम की परिपक्व अवस्था। और ये क्या आप लोग करते हो अपने परिवार में ही? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने परिवार में ये कर पाते हो? क्या ये संभव है? शायद हो सकता है नया नया किया भी हो, जब शादी नई नई हुई हो तो नया नया ऐसा सब हुआ भी हो कि थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया, अरे नहीं नहीं वहां मत बैठना, अरे अरे देखना संभालना नहीं, बाद में तो है क्या खड़ी है, बैठ जाना ऐसे। अरे यार, क्या ऐसा कर दिया तो उसको इतना लेवल गिरा दिया, अरे उठ 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 उठ, ऐसे कैसे कैसे बात करते हैं। पता चला पत्नी मोबाइल देख रही, हाथ में मोबाइल छीन लिया, अरे ऐसा कोई करता है, मोबाइल लेके फेंक दिया। तो अब
कैसे किसके साथ कितना प्रेम से नम्र व्यवहार करते हैं, वही तो प्रेम है। और वो क्या चाहता है वो कैसे पता चलेगा? जब उसको देखोगे। जब देखोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? अब गुरु महाराज का लेक्चर हो ना, शनिवार का लेक्चर किसने सुना? देख रहे थे, लेक्चर देख रहे थे स्क्रीन पर। अच्छा, एक चीज आपने देखा कि उनके साथ में गुरु महाराज बैठे हैं, उनके राइट साइड पर, मतलब मेरी राइट, उनकी लेफ्ट साइड पर एक प्रभु बैठे थे जो उनके सेवक हैं। उनकी नजर कहाँ थी? गुरु महाराज की ओर। सतत ऐसे गुरु महाराज को देख रहे थे, ऐसे ही देख। उनको क्यों ऐसे देखने की जरूरत क्या थी? वो ऐसे सामने ऑडियंस में देख सकते थे। उनका कार्य क्या है? कुछ भी सेवा। और सेवक का दायित्व सिर्फ इतना ही है कि वो एक टक देखे कि मेरे ठाकुर को क्या जरूरत है, मेरे गुरु को क्या जरूरत है, मेरे इष्ट, मेरे प्रेमी, मेरा जो भी है उसको क्या जरूरत है, वो देखे, वो देखता रहे। और जैसे ही उसको कुछ जरूरत पड़े, एक बिना विलंब तुरंत उसको सहायता करे। ये प्रेम की अभिव्यक्ति। भले ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा देख रहा हो लेकिन उसकी तिरछी नजर से ध्यान रहता है। जैसे पिता हमेशा पुत्र पर ऐसा नहीं कि ऐसे ही देखते रहेगा, वो अपना काम कर रहा है लेकिन उसका ध्यान होता है। माता का ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उस तरह से गुरु के प्रति और ठाकुर के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, अभी क्या आवश्यकता होगी। और आप कितनी बार जाके पूछते हो? मैंने तो कई बार क्लास में कहा, ये प्रैक्टिस चालू कर दिया। आप पूछते हो उनको, अभी क्या चाहिए, अभी कुछ लाऊं आपके लिए, कुछ बनाना है, सब ठीक है, आपको गर्मी लग रही है, ये है वो। व्यक्ति है, सामने बैठे हैं, पूछो। पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो? व्यक्ति है कि नहीं है? ये साक्षात ठाकुर है कि नहीं? तो फिर पूछते क्यों नहीं? क्या आपको डर लगता है कि कहीं बोलेगा हाँ मुझे अभी चाहिए, पिज्जा ला के दे? हाँ? हाँ? ठाकुर को जय हो। देखो क्या बोल रहे हैं शिव जीवन प्रभु, ठाकुर को ऐसे जाके पकड़ के पूछता है 2-3 बार, क्या चाहिए, ऐसा पूछता है। हाँ, फिर जवाब क्या आता है? क्या मांगता है ठाकुर? ठाकुर की इच्छा है, ठाकुर है ना, हो सकता है कभी जवाब दे भी दे। कोई भरोसा है कि नहीं देगा जवाब? दे सकता है ना। अचानक इच्छा हो जाए, बोल दे हाँ मुझे ये चाहिए तो। हाँ, लेकिन आप पूछो तो सही। पूछोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? पूछो क्या चाहिए, सब ठीक है, नहीं तो कम से कम देखो तो सही। जब भी बैठो तो देखो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ अच्छा, वहाँ कुछ अच्छा, ये ठीक है नहीं, पंखा चल रहा है, ये है वो है। और क्या है भक्ति का जीवन आपका? इतना सा करो, गुरु को और ठाकुर को इस तरह संतुष्ट करने का प्रयास तो करो। फिर देखो आपको, ए महाराज आप ज्यादा ही बोल रहे हो, लेक्चर तो देते नहीं है, मुझे तो बोलने दो। इतना तो करके देखो एक बार, इतना करके देखो, आपको लगेगा जीवन में कुछ जादू हो गया। मैं आपको जो मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ, मैजिक जैसा लगेगा, जादू एकदम। इतना ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा, पता चलेगा कि साक्षात ठाकुर वास्तव में बैठे हैं और आपके साथ आदान प्रदान हो रहा है। आपको अनुभव एकदम क्लियर होने लग जाए, हाँ साक्षात ठाकुर है और मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और वैसा ही हमारे गुरु महाराज के साथ, हमारे गुरु महाराज भी इतने शक्तिशाली है कि यदि आप ये मत समझो कि वो देह में है और उनकी रेंज खाली देह की है, ऐसा नहीं है। आप उनको फोटो में उनसे कुछ कहो, उनके कुछ बोलो, कुछ करो, तो अभी
हमने नया नया शुरू किया था जब, तभी हमको अनुभव हुआ था। एक बार कुछ हुआ और अचानक ही उनका आवाज़ ही बंद हो गया, और फिर मैं जैसे ही उनके प्रति हुआ तो तुरंत एकदम उनका हंसता हुआ चेहरा सामने आया, और फिर जब चालू हो गया ऑटोमेटिक। तो यानी बहुत ही लाइव है गुरु महाराज। गुरु महाराज फोटो में भी आदान प्रदान करते हैं, तो उतनी शक्ति है। ये बहुत, ये हम विश्वास करें ना करें लेकिन यही सत्य है। हमारे गुरु महाराज इतने शक्तिशाली हैं कि वे शरीर से कई बार उनकी बहुत बड़ी रेंज है, और आप उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हो, आप उनको पूछ सकते हो, उनको उनसे बात कर सकते हो, और गुरु महाराज सब समझ जाएंगे। मैंने भी कई उदाहरण दिए आपको। मैंने तो उनके टेस्ट ली थी, वो याद है किसी को उदाहरण? मायापुर में गया, और मुझे कई बार कई भक्तों ने कहा था कि मन पढ़ लेते हैं गुरु महाराज, सब अपने विचार जानते। ये वो तो 200-300 लोग बैठे थे, एक लेक्चर दे रहे थे गुरु महाराज मायापुर में, पंचतत्व एक्सटेंशन हॉल में ऊपर लेक्चर दे रहे थे। तो मैं गया, पीछे से पूरा हॉल भरा था, और जैसे गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं तो उनसे कम से कम 50 मीटर दूर जा कर के एकदम कोने में लास्ट में जाके मैं बैठा, प्रणाम किया, और उन जैसे गुरु महाराज का मुख इधर है और मैं इधर साइड में बैठा हूँ, मुख इधर है और मैं इधर बैठा हूँ कोने में, प्रणाम किया। प्रणाम करके मैंने मन से कहा, गुरु महाराज मैं आ गया। एकदम 90 डिग्री में उन्होंने सर घुमाया और मेरे तरफ सीधा मेरी आंख में देखा हूँ। थोड़ी वो ये मैं कई बार बता चुका हूँ ये घटना, कई बार, और मेरे पूरे शरीर के रोंगटे एकदम सीधे खड़े हो गए और मैं कांपने लगा। और मैंने कहा, क्षमा करिए गुरु महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी परीक्षा ले ली, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। तो उनकी इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य, लेक्चर दे रहे थे लेकिन मेरे मन के वो विचार उन्होंने पकड़े तुरंत, और जैसे और कहीं और नहीं, सीधा मेरी आंख में देखा उन्होंने, ऐसा करके सीधा। तो यानी इतने शक्तिशाली है सर गुरु महाराज। आप उनके पर श्रद्धा रखेंगे तो आपको कैसी भी विपत्ति से बचा सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में, और आपको ठाकुर जी तक पहुंचाने के लिए कोई डाउट नहीं है कि गुरु महाराज सक्षम है। लेकिन आपको पूर्ण श्रद्धा उन पर रखनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी, उनको प्रसन्न करना। ठीक है, तो किसी का कोई यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये सब जितनी चर्चाएं हमने की उसमें से किसी भी विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? आज आपने ध्यान कम दिया इसीलिए प्रश्न। उस दिन कितना अच्छा ध्यान देकर सुन रहे थे, आज आप थोड़ा। गुरु महाराज आ रहे हैं, तो गुरु महाराज आए, लेक्चर दी, तब गुरु महाराज का दर्शन भी हो गई, आरती भी, सिंगार आरती भी दर्शन की उनके साथ। बहुत ही अच्छा। और मंगल आरती में हम दोनों ही विचार कर रहे थे, गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुई, कैसे होगा। तो फिर सिंगार आरती में देखा गुरु महाराज आए, लेक्चर दी, फिर आरती भी की, उनके साथ दर्शन भी हुए। देखो ये है गुरु महाराज की करुणा, अपने भक्तों का हृदय समझते हैं गुरु महाराज और इच्छा पूरी करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली है गुरुदेव। हमें उनका ये ज्ञान होना चाहिए कि वो देह में है लेकिन लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। उनकी लिमिट देह की नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। और ठाकुर जी उनके, क्योंकि ठाकुर जी के बहुत प्रिय है ना, तो ठाकुर जी उनको, हमारे और उनके बीच में लिंक बन जाते हैं ठाकुर जी, और जो हम विचार व्यक्त करते हैं उनके प्रति वो ठाकुर जी उन तक पहुंचा देते हैं कि अरे तुम्हारा शिष्य राह देख रहा है, अरे अच्छा चलो चलो चलो। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। वो उदाहरण आप जानते हैं ना, एक बार हेलीकॉप्टर में गुरु महाराज एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे बंगाल में, और बीच में अचानक एक जगह ऐसी आई जहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ, गुरु महाराज ने कहा
एक काम करो, यहाँ हेलीकॉप्टर उतारो। बोले ऐसे कैसे उतारेंगे, ये तो कोई अनजान गांव है ये। बोला नहीं, यहाँ उतार। सबने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ उतारना है, हेलीकॉप्टर यहाँ उतार। तो जबरदस्ती उन्होंने किसी अनजान गांव में हेलीकॉप्टर उतरवाया। उतर गए, नीचे चलना शुरू कर दिया। अब सब पीछे पीछे भाग रहे। बोले कि कहाँ जा रहे गुरु महाराज? बोले चलो मेरे पीछे चलो। अच्छा, गुरु महाराज आगे आगे चल रहे, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं कि गुरु महाराज अनजान गांव में भाग कहाँ रहे, जा कहाँ रहे। और जाकर सीधे एक घर के सामने जाकर खड़े हो गए गुरु महाराज। और घर के अंदर से एक माता जी बाहर निकली और रोने लग गई जोर जोर से एकदम। बोले गुरु महाराज आप आ गए, मैं सोच नहीं सकती थी कि आप ऐसा कभी करोगे। वो पूरे गांव के अंदर एकमात्र ऐसी एक महिला रहती थी पूरे गांव में जो गुरु महाराज की शिष्या थी, और इतना उसको आशा था, एक ही आशा बस उसके हृदय में, हरि बोल, दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग। एक ही आशा थी उसके हृदय में कि गुरु महाराज बस मेरे घर पर आ जाए। अब ये तो असंभव था, वो स्वयं भी जानती थी ये संभव ही नहीं, क्योंकि कहाँ मेरा गांव, कहाँ गुरु महाराज, यहाँ कोई एक भक्त भी नहीं, पूरे गांव में मैं अकेली भक्त हूँ और कोई भक्त नहीं है, कैसे हो सकता है, असंभव बात है। तो सोचो गुरु महाराज ने क्या किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर वहां उतरवाया, वहां से चलते चलते सीधे उसके घर के सामने जाके खड़े हुए। तो आप कल्पना करो कि गुरु महाराज की शक्ति क्या है, सोच नहीं सकते हम। अकल्पनीय है कि नहीं ये बात? सीधा उसके घर पे ही जाते गुरु महाराज। तो ये, और बाकी सब पर बाद में समझ गया क्यों गुरु महाराज ने उतारा हेलीकॉप्टर, अब समझ में आया। तो इसलिए हमारे गुरुदेव बहुत ही दयालु, तो इतने दयालु के क्या बताएं। जैसे हम महाप्रभु को औदार्य कहते हैं, नित्यानंद प्रभु को उनसे ज्यादा उदार कहते हैं, श्रील प्रभुपाद को उनसे ज्यादा उदार कहते हैं, अब गुरु महाराज को तो हम क्या कहें। प्रभुपाद जी ने 5000 जीवों का उद्धार किया, और गुरु महाराज ने 80,000 जीवों का उद्धार किया। अभी भी फैक्ट्री चालू है, प्रोडक्शन चालू है। तो नरसिंह में तो 3 दिन हुआ था बोलता उधर। नरसिंह चतुर्दशी के टाइम 3 दिन तक दीक्षा हुआ बोलता। बांग्लादेश में बताओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो करुणा का ऐसा सागर है, इसलिए अब हमारे जैसे जीवों को, मुझे जैसे उन्होंने आज्ञा दी कि तुम दीक्षा गुरु बनने का प्रोसेस स्टार्ट करो, तो हमारे जैसे जीवों की क्या वैल्यू है उनके सामने। मतलब हमारे जैसे, मेरे जैसे 10,000 खड़े होंगे तो भी गुरु महाराज नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे जैसे जीवों पर कैसी करुणा करते हैं। हमारे जैसे अति तुच्छ जीवों को भी गुरु पद प्रदान करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आप केवल ये श्री गुरु चरण, हम सुबह यहाँ क्या करते हैं, लैपटॉप यहाँ क्यों है, हम यहाँ पर रोज सुबह मंगला आरती करने के बाद जब जप करते हैं तो यहाँ गुरु महाराज के और प्रभुपाद के चरण का स्लाइड शो रखते हैं, और हम सब गुरु महाराज और प्रभुपाद के चरणों पर ध्यान लगा करके जप करते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत, आर ना करी हम, हाँ सॉरी, बंदो मोही साथ। और फिर श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति, आर ना करी हम। श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति, और दूसरी कोई आशा करने की जरूरत नहीं है, उसमें ही सब आ जाएगा। तो इसलिए अपने श्री गुरु चरणों को पकड़ के रखो गुरु महाराज के, और अपने जीवन को सफल बनाओ, तो ही हम सफल हो पाएंगे। अपने आप अकेले अकेले ट्राई करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई उन लोगों को
किसी भी तरह से कुछ भी करके उनको गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि पता नहीं है गुरु महाराज इतने टाइम से मृत्यु के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठाप ठोक ठोकते रहते हैं। मृत्यु इधर जाता है उधर जाता है, इधर 6 मारा 4 मारा, मारते ही रहते हैं। बेचारा थक गया है मृत्यु, अरे अभी तो आने दो, अभी नहीं, अभी खेल रहा हूँ मैं। तब अचानक कभी प्रभुपाद बोले अरे चलो अभी उधर काम, उधर जरा जरूरत है, और गुरु महाराज कभी लीला अपनी समाप्त कर दे, उससे पहले उनसे दीक्षा ले लो। और जो बाकी है आपके संपर्क में उनको भी इंस्पायर करो, उनको भी प्रोत्साहित करो दीक्षा लेने, ताकि उनका उद्धार हो जाए। गारंटी है 100% कि अगर गुरु महाराज से ली है दीक्षा और अगर आप नियम पालन करते हो, 16 माला करते हो, तो आपको अवश्य गुरु महाराज ले जाएंगे। अरे ठीक है, और कोई प्रश्न है? बहुत ही उत्तम घटना है। चंद्रशेखर प्रभु हमारे गोलोक सेविनी माधवी माता जी के भ्राता भाई, छोटे भाई, वो भी बहुत समय से भक्ति से थोड़े से दूर थे, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि अब अचानक उनको इनका तो क्या है, बस सोचा खींचना है तो एक झटका मारा, खींच लिया। तो उनको ऐसा खींच लिया कि उन्होंने ठाकुर जी के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की, आजीवन नशा नहीं करेंगे, आजीवन मांसाहार नहीं करेंगे, आजीवन ये बाकी सब जो भी है हमारे नियम वो, और जप करेंगे और भक्ति को। अब देखिए ना, उन्होंने एक दिन में मूछ भी उड़ा दिया। तो भक्ति में एकदम तेजी से आगे बढ़ने के लिए सज्ज हो गए। और ठाकुर जी ने भी उन पर कुछ विशेष कृपा की है कि मुझे माध्यम बना करके, उनको बहुत डायबिटीज था, थोड़ी दवाई दी तो उनका डायबिटीज भी काफ़ी कंट्रोल में आ गया। तो ये भी उनकी, मेरे माध्यम से उन्होंने कृपा इन पर की है डायरेक्ट। तो अभी उन दोनों का आदान प्रदान शुरू हो गया और वो यहाँ हमारे बीच में आ गए। देखो कितने साल उन्होंने लगाए, लेकिन बहुत साल लगाए, लेकिन इन्होंने सोच लिया अब खींचना है, बहुत हो गया तो खींच लिया। तो ठाकुर इतने दयालु है, कृपालु है। प्रभु अब हमारे बीच में एक हमारा परिवार का हिस्सा बन गए। आप सब लोग, आप सभी से निवेदन है कि आप सब उनका ध्यान रखिए, उनको प्रशिक्षण दीजिए प्रेम से, उनको एक एक सिखाइए सब कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। आप सब मिलकर उनको सिखाते रहना, ठीक है? हाँ कि ना? ठीक है, तो समाप्त करें। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरु महाराज की, पिताय गौर प्रेमानंद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।